I would like to take this opportunity to welcome you all to this press event. I would also want to take the opportunity to thank you for making time for us from your busy schedules this afternoon. May I please introduce the members on the dais. We have with us Mr. Vikram Malhotra, CEO Viacom 18 Motion Pictures, Director of the film Son of Sardar, Mr. Ashwini Dheer, the star of the film, our very own dear Mr. Ajay Devgan, co-producer of the film, Mr. N.R. Pachisia. We are also very honored that this afternoon we have with us Shri Charan Singh Sapra, President of the Punjabi Cultural Heritage Board, Mr. Timmy Mehta, Mr. Gurpreet Singh Sehgal, and Mr. Mohan Singh Saini. I'd really thank all of you to have made this time for us. I would now request Mr. Vikram Malhotra, CEO Viacom 18 Motion Pictures, to kindly take us through the proceedings of the evening. Good evening, ladies and gentlemen. Happy that you could join us here in these numbers. Let me begin by setting the context of why we are gathered here today. You're all aware that our film Son of Sardar releases in a couple of weeks on November 13th. When we progressed on the path along with Ajay, Mr. Pachisia and our other co-producers in conceiving and setting this film up, this film was conceived as an entertainer which would highlight and accentuate the values of one of the proudest and most vibrant communities of our country, the Sikhs and Punjabis. As this film progressed and the first look, the dialogue promos, the songs of this film came out, it also came to our attention that unknowingly there may be parts of the film which were shown in those promos which may not be sitting down well with some members of these two communities, which we intended to actually glorify through this labor of love. As responsible producers, as members, proud members of not just the Indian film fraternity, but also of the Sikh and Punjabi community, we felt it our duty, and unanimously and collectively our duty, to address these concerns immediately. It is with great pleasure that I inform you today that not only have we creatively addressed all the issues, but we've been fortunate that the Punjabi Cultural Heritage Board, represented by Mr. Sapra and the other board members present here, have seen the full film. We have completely accepted and taken into account the suggestions which were made by the board members and Shri Sapra. And I'm very happy to inform you that the film has been given a 2 thumbs up by this community and the board. A big reason why we are here today. And taking this forward, I would now request Shri Sapra to share his thoughts on the film and other related matters of the community with us. Sapra Sahab. और इतना ही कहना चाहूँगा कि जब प्रोमोज आए थे तब काफ़ी सारे कंसर्न्स कम्युनिटी के लोगों ने केवल मुंबई से ही नहीं बल्कि पूरे देश से, शिमला, चंडीगढ़, नागपुर, दिल्ली, सभी जगह से लोगों ने कंसर्न मेल हमको आई थी. एंड वॉट एवर ऑब्जेक्शंस वर दैट टाइम, उसको अजय देवगन प्रोडक्शन ने क्लियर किया है. कुछ और भी सजेशंस बाद में आई, वो भी हमने जब जब बताई, वो इन्होंने कंसर्न देखी. एक स्टार्टिंग में जो गीत भी था, दरअसल वो गुरबानी से है, देह शिवावर मोहे है, तो उसके एक्सेंट जरा ठीक नहीं थे. तो वो एक्सेंट के बारे में भी जब बताया गया तो उस एक्सेंट के लिए खास इन्होंने सुखविंदर जी को बुला करके उसको फिर से गवाया और वो प्रॉपर पंजाबी एक्सेंट में गाया गया. I appreciate the efforts which you all have taken, and I feel the community will accept it now. हमने सबने ये देखी है फिल्म, उसमें जितनी भी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें थी, चाहे वो डायलॉग्स थे, चाहे वो सीन्स थे, वो सारे आपने डिलीट करे हैं. यू हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशंस
एंड आई थैंक द प्रोडक्शन हाउस फॉर दैट. इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी सारे प्रोडक्शन हाउसेज से कहा है कि आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन फ्री में गाइडेंस हम देने के लिए तैयार हैं कि आप कोई सिख या पंजाबी कैरेक्टर जब अदाकार कोई करते हो उसमें, तो यू नीड एनी हेल्प, लाइक कोई टर्बन बांधने के लिए यू नीड समबडी, तो हम वो भेज देंगे. आपको कोई सिख हिस्ट्री के बारे में कोई जानकारी चाहिए, सिख रिलीजन के बारे में कोई जानकारी चाहिए, या पंजाबी कम्युनिटी के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो वी आर रेडी टू गिव दैट फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ये पंजाबी कल्चरल हेरिटेज बोर्ड ने पहले सभी को कहा है. एंड आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि जैसे ये सिंह इज किंग से ये दौर शुरू हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे कई फिल्में आई, और मुझे याद है कि उसमें कई लोगों ने तो फिल्म रिलीज होने से पहले ही करेक्शन का प्रस्ताव अपने आप हमको दे कॉल्ड अस एंड दे गॉट इट क्लियर्ड. और इस बार भी तकरीबन ऐसे ही हुआ है कि जो जो चीज़ें हमने पॉइंट आउट करी या कम्युनिटी के लोगों ने मेल्स भेजी थी, वो सारी करेक्शंस आपने की है. आई एम वेरी थैंकफुल टू द प्रोडक्शन हाउस फॉर ऑल दैट. और इसी तरह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हमें भी गर्व है कि सिखों के बारे में, पंजाबियों के बारे में दिखाया जाए, उनका इतिहास बताया जाए. हमने जब परसों फिल्म देखी तो बहुत अच्छा लगा कि उसमें एक बहुत पॉजिटिविटी है सिखों के बारे में. उसमें एक सीन तो ऐसा है कि जब एक सिख लड़का लंदन में सिगरेट पीने लगता है, तो उसमें जो हीरो है जस्सी रंधावा, अजय जी, वो कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे धर्म को शोभा नहीं देता. ही करेक्ट्स हिम. केवल वो सिगरेट का इशू था, तो उसको हमने रिक्वेस्ट किया, उसको ब्लर कर दिया गया है. तो ऐसी जो सीखने वाली चीजें हैं, पगड़ी की सलामती और पगड़ी का जो एक रुबाब है, उसकी भी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया है. किस तरह से एक सिख अपनी पगड़ी को संभालता है, किस तरह से सिख अपने 5 ककार जो गुरु गोविंद सिंह जी ने दिए हैं उसको संभाल के रखता है, उसकी रक्षा करता है. इतिहास तो यही है कि हमारे सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने बलिदान दिए. गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने जब हिंदुओं को मुगल तंग करते थे, तब उस समय उन्होंने बलिदान दिए. दिल्ली के अंदर तत्ते तवे पर बैठे, तब वो शीशगंज गुरुद्वारा बना और रकाबगंज गुरुद्वारा बना. शीशगंज गुरुद्वारे पे गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई जब हिंदू पंडित, कश्मीरी पंडित आए थे उनको बचाने के लिए. तो ये एक इतिहास, एक लेगेसी जो चल रही है, उसको हमारी दुआ है, हमारी इच्छा है कि फिल्म इंडस्ट्री उसको दिखाए, अच्छे से दिखाए. और जो सहयोग हमारे पंजाबी कल्चरल हेरिटेज बोर्ड से चाहिए, we are ready to give all that support to all the production houses for making good films, having Punjabi characters, having Sikh characters, depicting Sikh history, depicting the Punjabi history in all your films. Thank you so much. I'm very thankful to Sapra Saab because when जब उन्होंने अपने concern दिखाए थे, तो हमारा सबसे पहला issue यही था कि जो intention है फिल्म का, it is entertainment and not hurting anybody's feelings. Unknowingly अगर एक दो चीज़ें जो भी concern थे, जो सप्रा साहब ने हमको बताए, तो हमने कहा कि we would love ask you to come and see the film, और आप अपनी पूरी संतुष्टि कर लें, और जो आपको लगता है कि objectionable हैं उसे हम rectify कर सकें तो हमारे लिए भी अच्छा होगा. because जैसा कि मैंने कहा कि I am being a Punjabi myself, I cannot, or any other culture, I would never want to hurt anybody's feelings. अगर 4 लोगों को भी कोई चीज़ गलत लगती है तो I don't want to do that. तो we jointly sat down and इन्होंने हमको जिस हिसाब से guide किया, I think we've all sorted everything out. So thanks to the whole board and thanks to Sapraji. Thank you, Ajay. Ladies and gentlemen, we are extremely honored that Mr. Charan Singh Sapra has decided to present a kirpan on behalf of the community to Shri Ajay Devgan. We would request him to kindly do that.
Thank you so much, Sapra Saab. I feel very proud receiving something like this. I'm very, very touched. Thank you so much. Ladies and gentlemen, the distinguished panel on the dais will take a few questions. So in case any of you have any questions, kindly place it now. थोड़ी बहुत जो नॉलेज मेरी कहती है कि किसी भी फिल्म को रिलीज़ करने से पहले सेंसर बोर्ड जो भी ऑब्जेक्शंस होते हैं उनको क्लियर करता है, उसके बाद फिल्म रिलीज़ होती है या रिलीज़ डेट फाइनलाइज होती है। अक्सर ये देखा गया है कि आपकी तरफ से जो ऑब्जेक्शंस आते हैं वो रिलीज़ डेट जब तय हो जाती है उसके बाद या फाइल किए जाते हैं या फिर ये पहले ही फाइल करते हैं और सॉर्ट आउट नहीं होता है, क्या होता है? ये जवाब अजय जी देना। ये जवाब मैं देना चाहता हूँ क्योंकि इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है और जब फिल्म के प्रोमो आए थे तब से ही सप्रा साहब और हम लोग बात कर रहे थे और तो इस बात को आज 2-3 महीने हो गए। 14/9 को 14 जुलाई को मैंने पहली चिट्ठी लिखी थी अजय देवगन प्रोडक्शन को कि प्रोमोस के अंदर 2-3 चीजें ही हैं, ये ऑब्जेक्शनेबल हैं, उसको आप डिलीट करें। दैट वाज द फर्स्ट लेटर। तो ऐसा नहीं है कि तारीख अभी डिसाइड हुई और उस समय ये जब प्रोमो नजर में आया, जब गलती दिखेगी तब हम उसको करेक्शन के लिए कहेंगे ना। और दूसरी चीज़ अजय जी आपसे आना चाहता हूँ कि जब ये जिस हिसाब से सप्रा साहब ने बताया कि ब्लर किए गए शॉट्स और कुछ डिलीट्स किए हैं, तो इससे क्रिएटिविटी कितना इफेक्ट होती है, क्यों नहीं पहले ही इस चीज़ का ध्यान? क्रिएटिविटी बिल्कुल हर्ट नहीं होती है क्योंकि जो चीज़ें रेक्टिफाई की जा सकती हैं लास्ट मिनट तक की जाती हैं हर फिल्म में, तो इससे फिल्म को कोई हार्म नहीं होता है, इससे बल्कि कई चीज़ें तो बेटर ही हो जाती हैं। अजय, एक सवाल ये भी रहेगा कि इस दिवाली जो है बॉक्स ऑफिस पर रोमांस जो कि जब तक है जान के साथ है और कॉमेडी जो कि सन ऑफ सरदार के साथ है, दोनों में टक्कर होगी, तो क्या लगता है रोमांस और कॉमेडी की जंग में? मैं यही सोच रहा था कि ये इससे पहले किसी और ने कोई और सवाल कैसे पूछ लिया। देखिए, दो पिक्चरों की टक्कर कभी नहीं होती है, पिक्चर अपनी जगह होती है और दो पिक्चर जब रिलीज होती हैं और दिवाली के पीरियड में हमेशा दो पिक्चर रिलीज होती आई हैं, दो पिक्चरों की स्पेस होती है, ऑडियंस की छुट्टियां होती हैं, तो दो अलग किस्म की फिल्में हैं और मैं तो ये चाहूँगा कि सभी फिल्में चलें, भगवान करे कि इंडस्ट्री की सब फिल्में चलें, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी इशू विद दैट। Also, Ajay, when it comes to portraying a religion in a film, it often comes up with some sort of a controversy. And same with your Son of Sardar. But still, you know, we keep making such movies. No, see, it's not, the intention is not to have any controversy. We take complete care that we should not do anything wrong. But sometimes what happens is, some things you don't realize that, you know, it'll be misunderstood. I won't even say misunderstood, understood in a different way. So, and then you have to realize that, you know, what intention we were trying to say, maybe that is not coming across. So then it's better to rectify it. अजय, इस तरह की फिल्मों में कितना रिसर्च होता है? जैसे शायद रिसर्च नहीं हुआ होगा इसलिए इतनी सारी उंगलियां उठी, इतनी सारी रिसर्च की कोई बात नहीं है। जैसे सप्रा साहब भी आपको बता सकते हैं कि फिल्म में जो कल्चर के बारे में दिखाया है, छोटी मोटी जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें थी वो अवॉइड की गई हैं, वो निकाल दी गई हैं, बट ओवरऑल अगर आप फिल्म देखिए तो आई थिंक जो राइटर हैं पिक्चर के और जो डायरेक्टर हैं पिक्चर के वो खुद पंजाबी हैं और हमारे पास जो मेरे टर्बन बांधते थे वो स्पेशली पंजाब से आते थे, तो ऑल दोज थिंग्स हैव बीन टेकन केयर ऑलवेज। अजय सर, 13 दिन बचे हैं, अगर कल से जोड़ लें तो किस तरीके से प्रमोशन वगैरह आपने प्लान किया है? क्योंकि अब तो promotions are very hectic but that's part of our job now,
तो अब लगे हुए हैं, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। अजय जी, ये शाहरुख खान जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो है यश जी की फिल्म उसी दिन लग रही है जिस दिन सन ऑफ सरदार। तो यश जी चूँकि अल्लाह को प्यारे हो गए, मरहूम हो गए, तो उनके ये फिल्म मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजय से कि वो आगे बढ़ जाए दिवाली के। ऐसा शाहरुख ने रिक्वेस्ट किया। उन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट नहीं किया। कौन बोल रहा है ये? हाँ। ये जरा हाथ दिखाइए। आपको शाहरुख साहब ने खुद फोन करके ये बोला? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा सुनने में आया है। नहीं, फिर आपने थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने इस उल्टा बोला है। बल्कि इट इज वेरी स्वीट ऑफ हिम कि उन्होंने कहा कि यश जी भी अगर होते तो यही चाहते कि दोनों फिल्में आए। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, तो आपने शायद गलत सुना। थैंक यू। लेनी पड़ती है, तो अमृत चखने वाले हो? नहीं, ऐसा जरूरी मैं बताता हूँ। किरपान जो आप अमृत छकने की बात कर रहे हो, वो 10वें पातशाह हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने वो प्रथा चलाई थी। एंड दैट इज अ डिफरेंट इशू कि उसमें बहुत सारा, जिसको अमृत छकना होता है, बहुत सारा पाठ, बहुत सारी बंदिश होती है, वो सारी चीजें, और फिर 5 चीजें मेंटेन करने के बाद किरपान इज वन ऑफ द 5 थिंग्स। सो ये एक हमने प्रेजेंट किया, बाकी 4 नहीं करी है इनको अभी। उसके लिए 5 लेने पड़ते हैं। आई थिंक बहुत ही मुश्किल काम है। उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सेल्फलेस और किसी और लेवल पे पहुंचना पड़ता है। मुझे लगता नहीं है कि मैं उस लेवल पे पहुंचा हूं। जिस दिन मैं पहुंचूंगा शायद फिर मैं पहुंच जाऊंगा सबके पास कि अब मैं आई एम केपेबल ऑफ इट। राइट नाउ आई थिंक आई एम नॉट केपेबल ऑफ इट। अजय, उसके Final 2 questions, please. अजय, उसके लिए पहले सिगरेट छोड़नी पड़ेगी आपको। बिल्कुल, और बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये करना, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की फिल्म में। जब भी मैंने पगड़ी बांधी, आई डिड नॉट स्मोक। तो अगर इफ आई हैड टू स्मोक, आई वुड रिमूव माई पगड़ी, आई वुड गो सिट एंड देन स्मोक। सप्रा साहब, आपका जो ऐतराज आपकी बात कर रहे थे, तो क्या एसजीपी से नहीं आपको कुछ ऐतराज की बातें उठाई थी कि इस फिल्म में ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी सारे लोग, हमारा जो पंजाबी कल्चरल हेरिटेज बोर्ड है, वी हैव मेंबर्स अक्रॉस द कंट्री। तो जिस बंदे ने प्रोमो देखा और उनको 2-3 चीज़ें उस समय लगी कि भाई ये गलत है, उसमें डायलॉग्स थे उस समय तो मोस्टली, तो वो डायलॉग्स इन्होंने दुरुस्ती कर दिया है। वैसे आजकल सिख कम्युनिटी में कई फिल्में बन रही हैं, सिंह इज किंग, यमला पगला दीवाना, सन ऑफ सरदार एंड और भी कई आ रहे हैं। तो आगे भी आप इस तरह की अलर्टनेस रखेंगे और ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, इसके लिए और क्या कुछ आपको करना चाहेंगे? जी, मैं तो चाहता हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं तो इसीलिए अभी आपके सामने भी कहा कि आपके जरिए से भी प्रोडक्शन हाउसेज में मैसेज चला जाए, भाई किसी को पहले मदद चाहिए हमारे से, दे वांट टू आस्क समथिंग अबाउट द रिलीजन, अबाउट द कम्युनिटी और अबाउट एनी सिक अपीयरेंस, तो वो हमारे से पूछ ले, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करने के लिए तैयार हैं। सो आई एम ऑफरिंग इट। थैंक यू सो मच। Final question, please. The last question, please. No, I have not been. No more have I been very subtle because I think it is, yeah, and I think if I remain subtle, I think I'll be out of job. So I need to promote my films. Thank you. Thank you very much. We would like to thank our distinguished guests on the panel for making their time today afternoon, and thank all members of the media for coming across in such large numbers.